So guys, I hope I am visible and audible too. So here, now we are going to discuss the remaining portion of the physiography of India. So we have discussed the physiography of Peninsula. Now in the Peninsular region, we have two regions like Western Ghat and Eastern Ghats. Get a point? Eastern Ghats and Western Ghats. So here you can see so entire plateaus and hills we have seen in the previous session, the entire hills and plateaus. Now the thing is we have to discuss ghats, which are the parts of peninsular plateau. तो घाट्स क्या है? इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट का ही हिस्सा है, उनका ही हिस्सा है पेनिनसुलर रीजन का. So here we have two ghats, Western Ghats and Eastern Ghats. Okay, this is your Western Ghat, and this is Eastern Ghat. Eastern Ghat is in broken form. You can see here. Western Ghat is a continuous range along the western part of peninsula, while Eastern Ghat is along the eastern part of peninsula. Okay, now see. So Western Ghats basically they are the part of western part of peninsula, and as you can see in the diagram as we have discussed in the previous सेशन, तो पीछे का जब डायग्राम दिखता है हम लोग एक पीडीएफ, लेट मी ओपन अ पीडीएफ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स more clearly. I have shown you the PDF last time where we have gone through the various types of hills and plateaus. Okay, so various hills and plateaus you can see over there. So if we are discussing Western Ghats, so Western Ghat is the part of western part of peninsula as I have told you. तो देखते हैं इसमें क्या क्या है. देखो, तो जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, when we are talking about वेस्टर्न घाट्स, तो इट इज नोन एज सह्याद्रीज. Okay, is known as Sahyadris. And I hope you have gone through the various plateaus. अभी मिल नहीं रहा वो पीडीएफ. I had sent it to you. मैंने ग्रुप में डाल दिया है. उसमें देखना बहुत सारा हिल्स, छोटा छोटा इधर वेस्टर्न घाट की तरफ भी है और ईस्टर्न घाट की तरफ भी है ना. तो उसमें दो पिक्चर, एक प्लेटू वाला है और दूसरा हिल्स वाला. भी मैं सर्च कर रहा था, मिला नहीं है, बट मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है. तो ग्रुप में इसको देख लेना कि भाई कैसे कैसे ये होता है ना. देखो वेस्टर्न घाट्स में क्या है, ये सह्याद्री है, एंड द एवरेज हाइट ऑफ दिस घाट इज, एवरेज हाइट ऑफ द घाट इज व्हाट यू कैन सी. लेट मी राइट हियर, पुश इट हियर so I can write something about ghats. So they are the example of block mountains, mind it. Ghats are the example of block mountains, and such ghats are having step like structure. इधर से अगर तुम वेस्ट की तरफ देखते हो तो वेस्ट में ये एकदम ऐसा है, और ईस्ट की तरफ जाके थोड़ा सा स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है.
दिस इज घाट, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है घाट का, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट इस रीजन में अरेबियन सी है. So this is the Block Mountain, or I mean Western Ghats. Basically, we are discussing right now about Western Ghats. So this is Western Ghats are known as Sahyadris. They are known as Sahyadris, and they are the example of Block Mountains. Mind it, किसके example है? Block Mountain. ठीक है. तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है यहाँ पे, और ये तुम्हारा वेस्टर्न घाट एंड दिस इज योर ईस्टर्न घाट. एवरेज हाइट इज Average height of Block Mountains or Western Ghats is around 900 to 1100 meter. This is the average height of Western Ghats. And in terms of width, it is 50 to 80 kilometer of width. Width कितना है? चौड़ाई 50 to 80 kilometer. So these are the few important points about Western Ghats. इसको तुम्हें ये समझना है कि वेस्टर्न घाट का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम्हें याद रखना है. बाकी चीजों को तुम थोड़ा सा मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इसके सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना. तो ये कुल मिला के जो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, अगर तुम देखते हो वेस्टर्न घाट्स को, आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल. तो कॉन्टिन्यूअस रेंज है. इट मींस यू कैन नॉट क्रॉस फ्रॉम हियर टू हियर. वेस्टर्न घाट को क्रॉस करना है तो पासेस से क्रॉस करते हैं. लेट्स सी द पासेस ऑफ वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से पासेस हैं? इंपॉर्टेंट पासेस हैं वेस्टर्न घाट्स में. लाइक दिस इज सपोज वन पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, and here you are having pass. Then second part of western ghat, again passes. Then you are having again mountains, and then Nilgiri is here. Mountain ranges western घाट के नीचे के नीलगिरी है. नीलगिरी के बाद फिर एक पास है. देन छोटा छोटा हिल से नीचे एक और पास यहाँ पर है. You can see there are 4 passes in Western Ghats. There are 4 passes in Western Ghat. I hope it is clearly visible to all of you. The first pass of Western Ghat is known as, this is your Pal Ghat. Pal Ghat. Thal Ghat. So Thal Ghat is connecting Mumbai to Nasik. The next one is Bhor Ghat. Bhor Ghat is connecting Mumbai to Pune. This is number 1. This is Thal Ghat, I am writing T. This is Bhor Ghat, I am writing B. And then Pal Ghat. Thal Ghat, Bhor Ghat, Pal Ghat. Pal Ghat is connecting Kochi to Palakkad. Palakkad जो रीजन है इधर का, कोची टू पलक्कड़. ओके. चेन्नई, कोची टू चेन्नई या फिर पलक्कड़ टू चेन्नई. कोची और पलक्कड़ टू चेन्नई. और नेक्स्ट है तुम्हारा, सो दिस इज योर पाल घाट. सो आई एम राइटिंग पी हियर. थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट. ओके. देन लास्ट वन इज सेमकोट्टा गैप.
Senkotta Gap is connecting Thiruvananthapuram, that is the capital of Kerala, Thiruvananthapuram to Madurai. I'm writing S. S means Senkotta Gap. So these are the passes of Western Ghats, as you know. ये क्या है, ये चारों वेस्टर्न घाट के पासेस हैं, और यहाँ देखो ये नाम मैंने इधर पे लिख दिया है और उधर भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये पालघाट से, और सॉरी थालघाट, भोरघाट, पालघाट एंड सेलकुट्टा, इसको क्रॉस करने के बाद यू आर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू नासिक, मुंबई टू पुणे, कोच्चि और पलक्कड़ टू चेन्नई एंड थिरुवनंतपुरम टू मदुरई। इस तरह से तुमको क्या करना है, ये याद रखना है कि पासेस कौन कौन से वेस्टर्न घाट्स में, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग वेस्टर्न घाट्स व्हिच आर नोन एज सह्याद्रीज। ठीक, सो वेस्टर्न घाट्स, एज यू नो, बेसिकली थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सा हिल्स वगैरह है, देखो एक अलग डायग्राम बनाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में तो है नॉर्दर्न सह्याद्री, सेकंड इज सदर्न सह्याद्री, उसके बाद है नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे है अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स एंड नागरकोइल हिल्स। तीन हिल्स नीचे भी है, दिस इज अन्नामलाई हिल्स, दिस इज कार्डमम हिल्स, दिस वन इज नागरकोइल हिल्स। ठीक, तो ये हिल्स नीचे हैं और इनको, दिस इज योर नीलगिरी, also writing for these Nilgiri, this is southern Sahyadri, this is northern Sahyadri। Okay, southern Sahyadri and northern Sahyadri, and you can see like 16-degree latitude is dividing northern Sahyadri to southern Sahyadri. See, northern Sahyadri is entirely made up of basaltic rocks. Southern Sahyadri is made up of, you can say, granitic rocks, granitic gneiss, as you know. We have discussed about granitic gneiss in the previous session. तो ये क्या है, पूरा हमारा वेस्टर्न घाट का शार्पनेस तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना सर? ठीक है, तो देखो ये तो हो गया ग्रेनाइटिक रॉक्स और इसका बना हुआ। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको देख रहे हैं पूरा ऊपर से नीचे जो घाट्स है, तो घाट्स में ऑब्वियसली यू विल फाइंड व्हाट, घाट्स में तुमको क्या मिलेगा, इधर और भी कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स मिलता है। फॉर एग्जांपल अन्नामलाई, अन्नामलाई के ऊपर एक हाईएस्ट पीक है, दैट इज अन्नामलाई के ऊपर यहाँ पर है हाईएस्ट पीक, दिस इज अनाईमुडी। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस वन। ओके, drawing with different color, this is Anaimudi, which is the highest peak of the entire South India. It is the highest peak of entire South India, पूरे South India में ये हाईएस्ट पीक है। कौन सा? अनाईमुडी। अनाईमुडी में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अनाईमुडी क्या है, पूरे साउथ इंडिया का, और कहाँ पर है? अनाईमुडी इज लोकेटेड ओवर वेयर? इट इज लोकेटेड ओवर अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई के ऊपर है अनाईमुडी।
ये तुम्हें लोकेशन देखना है। एंड अन्नामलाई किधर है? नीलगिरी के नीचे, माइंडेड। गैप पासेस, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पासेस, तो उसको भी दिमाग में रखना है। और यहाँ देखो, दैट इज अन्नामलाई के ऊपर नीलगिरी और नीचे कार्डमम है। तो अनाईमुडी इज लोकेटेड वेयर? अनाईमुडी इज लोकेटेड ओवर द वेयर? Annamalai Hills, and this is the highest peak of South India. Mind it, Annamalai is the highest peak of South India, entire South India. इसका highest peak है, and इसका height भी लिख लो 2695 मीटर. This is the highest peak of South India. Okay. और नीचे अन्नामलाई के नीचे क्या है देखो, कार्डमम हिल्स एंड नागरकोइल हिल्स. कार्डमम हिल्स एंड नागरकोइल हिल्स. तो ये अन्नामलाई है. और नीलगिरी जो है यहाँ पे, नीलगिरी, उसके ऊपर भी एक पीक है, दैट इज नोन एज डोडा बेटा. राइटिंग हियर डोडा बेटा is the highest peak of Nilgiri. डोडा बेटा is the highest peak of what? नीलगिरी. तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा है, डोडा बेटा सबसे ऊंचा है ना. और डोडा बेटा कहते हैं कि भाई डोडा बेटा सबसे ऊंचा है, लेकिन डोडा बेटा में भी कुछ जोग्राफर कहते हैं कुद्रेमुख. कुद्रेमुख क्या है? वो सबसे ऊंचा बोलते हैं. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया. सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज कुद्रेमुख. कुद्रेमुख किधर है? वो डोडा बेटा के ऊपर है, ध्यान रखना. कुद्रेमुख किधर है? डोडा बेटा के ऊपर लोकेटेड है. इफ यू गो टू द कुद्रेमुख रीजन, यहाँ देखो डोडा बेटा के ऊपर, ये नीलगिरी का ही पार्ट है कुद्रेमुख. इसमें ऐसे लिख लो कुद्रेमुख. कुद्रेमुख क्या हो गया? सेकंड हाईएस्ट पीक हो गया. एंड अन्नाईमुडी क्या हो गया? दैट इज द फर्स्ट हाईएस्ट पीक. ओके. सो कुद्रेमुख इज द पार्ट ऑफ डोडा बेटा. ठीक है, याद रहेगा. और कुद्रेमुख का हाइट कितना है? दैट इज 1895 मीटर. तो बहुत ऊंचा नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न घाट ही बहुत ऊंचा नहीं है, तो फिर ये सब इतना ऊंचा कैसे होगा, है ना. इसको ध्यान रखना कि डोडा बेटा सबसे ऊंचा, मतलब सॉरी, सबसे 2695 मीटर. तो क्या हो गया? फिर से एक बार देख लो इसको, सो दैट यू शुड नॉट कंफ्यूज फ्रॉम दिस फैक्ट. अनाईमुडी इज 2695. देन डोडा बेटा क्या है? डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट 2637. थोड़ा ही कम है, 2695, और इसका है 2637. डोडा बेटा के पास है कुद्रेमुख, दैट इज 1895. तो ये साउथ इंडिया के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाईएस्ट पीक है. दे आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द एंटायर साउथ इंडिया. ओके. सो डोडा बेटा इज लोकेटेड ऑन नीलगिरी, isn't it? And even कुद्रेमुख is located in कर्नाटका. तो यहाँ पर ध्यान रखना कि डोडा बेटा के पास ही कुद्रेमुख है, वो सब नीलगिरी पर है. और ये हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है. पॉइंट यहाँ तक ये क्लियर हो गया. अब आगे चलते हैं. इसके बाद देखो, और भी इसमें बहुत सारा बोलते हैं ना कि कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इफ यू सी द वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में क्या क्या है देखो. ऊपर देखना, महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, ये सब इधर मिलेगा. तो और भी छोटा छोटा जो हिल्स है, अजंता, महाबलेश्वर, ठीक है, बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज, ये सब रेंज भी इधर है. लेकिन सारा रेंज वेस्टर्न घाट पर नहीं है, कुछ रेंज महाराष्ट्र में है. तो एज आई हैव गिवन यू द पीडीएफ इन द प्रीवियस सेशन, आफ्टर प्रीवियस सेशन, तो उस पीडीएफ को देखना. तो वहां पे तुमको मिलेगा, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी कुछ रेंजेस है, छोटा छोटा रेंजेस है, विच आर नॉट द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स. कुछ और रेंजेस है जो वेस्टर्न घाट के पार्ट नहीं है, बट महाराष्ट्र में है. ठीक है, उनको हम बोलते हैं हिल्स ऑफ महाराष्ट्र.
फॉर एग्जांपल अजंता है, बालाघाट है ना, ये सब दे आर द हिल्स ऑफ महाराष्ट्र, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग हियर। वेस्टर्न घाट में ये तीन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, अनाईमुडी, डोडा बेटा और कुद्रेमुख, ठीक है, वेस्टर्न घाट में। इसके बाद वेस्टर्न घाट में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे और भी जैसे कुछ जो कुछ है, जैसे लिख लो इसका नाम, अदर हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अदर हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर हटा दो, ये महाराष्ट्र में चला जाएगा, कालसुबाई, 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 ठीक है। कालसुबाई है वो कहाँ है, नॉर्दर्न सह्याद्री में, नॉर्दर्न सह्याद्री यू नो दैट कौन सा है, दिस इज द नॉर्दर्न सह्याद्री, दिस इज सदर्न सह्याद्री। तो नॉर्दर्न सह्याद्री में तुमको मिलेगा कलसुबाई, ठीक है। इसके बाद सब फिर नीचे ये सब कुद्रेमुख, डोडा बेटा, अनाईमुडी ऐसे सीक्वेंस में मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिल्स एंड दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स रॉक माउंटेन का एग्जांपल है, एंटायरली बसाल्टिक रॉक्स ऊपर, नीचे ग्रेनाइटिक रॉक्स, फिर नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे फिर अन्नामलाई, कार्डामम और नागरकोइल, इनको सदर्न हिल्स, दे आर आल्सो नोन एज सदर्न हिल्स, इनको सदर्न हिल्स बोलते हैं। दे आर नोन एज सदर्न हिल्स, ठीक है। इस तरह से तुमको हिल्स को और माउंटेन्स को देखना है। नेक्स्ट आते हैं ईस्टर्न घाट्स पर। देखो ईस्टर्न घाट्स में ब्रोकन फॉर्म में पूरा रेंजेस है। In the eastern Ghats, you will find ranges in broken form, as I have shown you in this diagram. देखो पहले वाला सबसे देखो, दे आर ब्रोकन, यहाँ भी टूटा है, इधर से भी टूटा हुआ है। और वेस्टर्न घाट की हाइट ज्यादा है, ईस्टर्न घाट्स की हाइट कम है। बोथ आर हिल्स, ईस्टर्न घाट भी क्या है, वो भी एक प्रकार का हिल है, पर उसकी हाइट क्या है, कम होती है। तो ये भी वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन एक बार लिख लेना इधर, दैट इज फ्रॉम माउथ ऑफ तापी टू कन्याकुमारी, okay, वेस्टर्न घाट्स बिटवीन और तापी टू, इसका एक्सटेंशन है घाट्स, ईस्टर्न घाट्स is extended, we can say कन्याकुमारी जाट ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कटा, ये कहीं ना जो रिवर्स है उनके थ्रू इसको किधर से किधर फ्लो, ईस्ट, कृष्णा, कावेरी कर रहे हैं ईस्टर्न घाट को, दैट्स व्हाई ईस्टर्न घाट इज द mountain contemporary to Aravalli, mind it, is contemporary to Aravalli उतना ही ईस्टर्न घाट है, तो contemporary है। we will discuss all these things in optional classes, ऑप्शनल की क्लासेस में सारा कुछ डिस्कशन होता है, क्यों ये इतना पुराना है, कैसे। तो एंड द एंटायर ईस्टर्न घाट इज रग्ड एंड टेरेनियस, रग्ड मतलब ऊबड़ खाबड़ है, और हाइट भी कम है ईस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि देखो इरोजन हुआ है बहुत ज्यादा रिवर्स के थ्रू, और साथ में पुराना भी है, पुराना लैंडमार्क पे ज्यादा इरोजन होता है, और साथ में नदी भी, रिवर्स भी उसको इरोड किया है। तो ईस्टर्न घाट्स देखो अभी हम देख रहे हैं, इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम उड़ीसा
hills of Odisha to what? Hills of Odisha to Kanya. Okay. This is what? This is the extension of ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है. और वेस्टर्न घाट का हाइट कितना था? एज यू नो 900 to 1100 मीटर. ईस्टर्न घाट का हाइट क्या है? देखो, ओनली एवरेज हाइट है 600 मीटर. बहुत कम है. एवरेज हाइट of eastern ghat is 600 meter. That is very less because of it is very older, and the entire eastern ghat is made up of metamorphic rock. Obviously tough rocks, क्योंकि टाइम के साथ साथ टाइम के बाद तो ठीक है मेटामॉर्फिक रॉक है ये. और लेकिन बहुत ज्यादा इसमें इरोजन हो गया, 600 मीटर की हाइट तक आ गया, और रिवर्स भी इसमें बहुत ज्यादा इरोजन किया है. ठीक है. सो ईस्टर्न घाट अगर देखते हैं तो इसका विड्थ भी ज्यादा है उससे. इसका वेट कितना था? लगभग 50 to 80 वेट थे. 80 to 50 to 100 किलोमीटर. ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट. और इसमें बहुत सारा जो मैंने कहा ना कि उबड़ खाबड़ है. इट इज बेसिकली नॉट वेरी स्मूथ टेरेन. इट इज वेरी रग्ड टेरेन. रग्ड मतलब उबड़ खाबड़ या ठीक है. नीचे देखो, अगर तमिलनाडु में देखते हैं तो यहाँ से ईस्टर्न घाट का रेंज जावाडी. ये रेंजेस किधर है? ये रेंजेस हैं ईस्टर्न घाट के तमिलनाडु स्टेट में. तमिलनाडु स्टेट इज हैविंग, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसको एक बार इरेज कर दे रहा हूँ. ठीक है, लिख लिया. आई होप यू हैव रिटन दिस थिंग. This is oil, sugar oil. This is these ranges they are the part of all are in the broken. टूटा हुआ इनको ब्रेक. ठीक है, ब्रोकन. और ऊपर जाओ पालाकुंडा नागरी नल्ला मलाई ranges. These four ranges are the part of Andhra Pradesh. And these four ranges are the part of Tamil Nadu. Okay, all these things.
So this is all about ईस्टर्न घाट्स. ओके, इसको बोलते हैं जो था. अभी आते हैं कोस्ट. नेक्स्ट सपोज दिस इज योर घाट. अच्छा, इसमें एक और दो पॉइंट मैं बता दूं, मैं वीडियो इसको बता दूं यहाँ पर तुमको. ओके, जो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीटिंग एट नीलगिरी इज द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. दोनों का जंक्शन है यहाँ पर नीलगिरी के पास से. नीलगिरी के नीचे क्या है, दैट इज यू नो दैट अन्नामलाई, नागरकोइल एंड सब है. ये जो जंक्शन है, नीलगिरी इज द जंक्शन, तो कहीं ना कहीं इधर का हिल से कनेक्टेड है. ओके, और एक हिल यहाँ पर गया है, दैट इज पालनी हिल्स. जो कनेक्टेड हिल्स बता रहे हैं, दिस इज पालनी हिल्स. तो पालनी हिल्स एक तरह से कनेक्ट करता है इसको, ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से. एंड पालनी हिल्स, इफ यू सी द पालनी हिल्स में दो हिल स्टेशन है. देयर आर टू हिल स्टेशन इन पालनी हिल्स. ऊटी, दैट इज उदगमंडलम, the part of Palni Hills. Mind it, Uddagmandalam is the part of Palni Hills, and the next hill station is Kodaikanal. So Kodaikanal and Ooty is the older name of Uddagmandalam. Both the hill stations are the part of Palni Hills. Point. तो ये वाला पॉइंट मुझे बताना था. नाउ दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. अभी हम देखते हैं कोस्टल एरिया, कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट. सपोज दिस इज वेस्टर्न घाट and this is your Arabian Sea. Okay, and this is your suppose Eastern Ghats. And here you can find Bay of Bengal. Okay, Bay of Bengal and Arabian Sea. Now see, this is the coastal area. Now I am drawing with different color. That is, this is the coastal area. Now you can understand which coast is wider, eastern coast or west. This is western coast. This is narrower. The eastern coast is wider. Okay, eastern coast is wider. You can see in this picture, in this diagram. I am writing here eastern coast. This is your east coast, and this is your west coast. ये और भी ऊपर जाएगा वैसे वेस्ट कोस्ट, गुजरात तक जाता है. कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट. ठीक है, दो कोस्ट है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार. लेट्स सी. फर्स्ट इज वेस्ट कोस्ट. कम टू द वेस्ट कोस्ट. वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. कोस्ट किसका है, कोस्ट किसके किसके बीच में है? देखो, कोस्ट इज इन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड व्हाट, Arabian Sea. The coastal area is the plain area which is lying between Arabian Sea and Western Ghat. Western Ghat और Arabian Sea के बीच का जो पार्ट है, that is known as what? That is known as Western Coast.
कोस्टल एरिया को अगर हम तुम देखो तो कोस्टल एरिया क्या है, ये दोनों के बीच में है। वेस्टर्न कोस्ट है किसके बीच में, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, ठीक है ना। और ये गुजरात से इट इज एक्सटेंडिंग नाउ वेस्टर्न, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न घाट, वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न कोस्ट, so it is extended from Surat in Gujarat to Kanyakumari। ये इसका एक्सटेंशन है कोस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट घाट्स, घाट्स का हो गया। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कोस्ट का एक्सटेंशन कितना है, सूरत से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक, ठीक है। और सूरत से कन्याकुमारी तक इसको कौन कौन से स्टेट में क्या क्या नाम देते हैं, लेट्स सी। सपोज वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट का नाम देखो क्या क्या हो सकता है। इन गुजरात नोन एज गुजरात प्लेन, इन महाराष्ट्र एंड गोवा known as Konkan Plain, and then Goa to Karnataka and Mangalore. This is Kannada Plain, and then Malabar coast. So the entire coast has been divided into 4 parts, 4 segment में ये divided है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो गुजरात का मैदान, ठीक है, that is in Gujarat Plain is in Gujarat state, that is also known as Saurashtra and Kathiawar, सौराष्ट्र एंड काठियावाड़ उसको यही कहते हैं, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है सबको, गुजरात, सौराष्ट्र एंड काठियावाड़। अब इसके नीचे आओगे तो दैट इज व्हाट, दैट इज कोंकण प्लेन। कोंकण प्लेन इज फ्रॉम दमन, यहाँ पर दमन दीव है, दमन टू गोवा, तो पूरा महाराष्ट्र आ जाता है। तो कोंकण प्लेन is located between Daman and Goa. Mind it. Konkan plain is located between what? Konkan plain is located between Daman of Maharashtra to Goa. यहाँ पे बीच में लिख लो कोंकण प्लेन, Daman of Maharashtra to Goa. Then Kannada plain. Kannada plain is from Goa to Mangalore. Okay, Kannada plain is located from where? That is Goa to Mangalore. And this is known as Kannada plain. क्या बोलते हैं, कन्नड़ा प्लेन। इस सब में भी बहुत डिटेल्स है, भी बहुत सारा डिटेल्स जो है हम लोग ऑप्शनल की क्लास में करेंगे, ठीक है। फिलहाल जीएस की क्लास में ये सब हम लोग को करना पड़ेगा। तो कन्नड़ा प्लेन इधर है, उसके नीचे फिर क्या है, मैंगलोर, सुन रहे, मतलब गोवा और मैंगलोर के बीच में है कन्नड़ा प्लेन। कन्नड़ा प्लेन इज द पार्ट ऑफ विच स्टेट, कर्नाटका। कर्नाटका, गोवा तो बहुत छोटा है। कोंकण प्लेन इज द पार्ट ऑफ बेसिकली महाराष्ट्र, और मालाबार कोस्ट किसका है, केरला। गुजरात प्लेन यहाँ पे लिख दिया है गुजरात, राइटिंग ऑल्सो हियर गुजरात। In this way the entire plain, coastal plain has been divided, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ठीक है, सब ध्यान रखना है। तो ये सारा कुछ इसका पार्ट है, सब गुजरात। और हाँ, इधर आ जाओ, मैंगलोर टू कन्याकुमारी, केरला, मैंगलोर टू कन्याकुमारी, आई एम राइटिंग हियर
is known as Malabar coast. Okay, Malabar coast. तो ये सारा क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द कोस्टल रीजन्स ऑफ व्हाट western part of India. Okay, now come to the coastal region of, I mean, east coast. देखो, this was the west coast and now we'll see the east coast. East coast तीन स्टेट में जाता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. So let's see eastern coast. As you know, east coast is wider because of deposition of sediments brought by the rivers in this side. इधर rivers आके डेल्टा वेल्टा बनाता है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. डेपोजिशन बहुत हुआ है, तो इस वजह से क्या हो गया? बिकॉज ऑफ दिस ईस्टर्न कोस्ट इज वाइडर. ओके, नाउ ईस्ट कोस्ट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम स्वर्णरेखा रिवर. स्वर्णरेखा रिवर इज फ्लोइंग इन विच स्टेट? झारखंड. So it is extended from Swarnarekha river to कन्याकुमारी. रेखा से कितना तक है? कन्याकुमारी तक ये पूरा एक्सटेंडेड है. रेखा टू कन्याकुमारी, एक्सटेंशन ऑफ ईस्ट कोस्ट, है ना. इसको तीन पार्ट में देखते हैं हम लोग. नाउ इधर चार पार्ट में था ना, फोर पार्ट में. इधर स्वर्ण रेखा टू महानदी, इधर का जो बाउंड्री है ये रिवर्स है. स्वर्ण रेखा टू महानदी, इट इज नोन एज उत्कल कोस्ट. इस वाला पार्ट को कहते हैं, जो कि उड़ीसा में मेनली और थोड़ा झारखंड में भी है, उत्कल कोस्ट. स्वर्ण रेखा टू महानदी, दिस इज उत्कल कोस्ट. तो उड़ीसा, उड़ीसा का नाम उत्कल, ठीक है, वो हिंदी में वैदिक लिटरेचर में सब उत्कल बोलते थे उसको. तो उत्कल कोस्ट ये है. देन नॉर्दर्न सरकार, महानदी टू कृष्णा, महानदी टू कृष्णा रिवर एज को नॉर्दर्न सरकार कहते हैं. नॉर्दर्न सरकार, and this is the part of which state? Andhra Pradesh. Andhra Pradesh में it is known as what? Northern Sarkar, है ना. See here, in Odisha it is Utkal coast. In Andhra Pradesh it is which coast? Northern Sarkar. Now then, Krishna to Kanyakumari, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, इसमें आंध्र प्रदेश भी और तमिलनाडु भी है. थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु का ज्यादा पार्ट है, बस थोड़ा पार्ट आंध्र प्रदेश का भी है. इसको बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, mainly in Tamil Nadu. These are the coastal region of what? India, east coast region of India. तो हम लोग क्या देख लिए? देखो, घाट्स भी देख लिया, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट. और अब तुम लोग को थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आइलैंड्स वगैरह, ठीक है. जो आइलैंड्स, इसका पीडीएफ तुम लोग को वैसे मिल जाएगा, आइलैंड्स का भी, है ना. जितना भी पीडीएफ है तुमको लक्षद्वीप और आइलैंड दोनों का मिल जाएगा. तो लेट्स सी. अब देखो, इसमें भी बहुत सारे डिटेल है. ईस्ट कोस्ट पे इतना मतलब डिटेल है कि उतना डिटेल तुमको ऑप्शनल वगैरह में
थोड़ा जानकारी ज़्यादा होगा। तो लेट्स सी द अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखते हैं थोड़ा। आइलैंड्स ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया। यहाँ पर दो तरह का आइलैंड है, एक है अंडमान एंड निकोबार, द नेक्स्ट इज लक्षद्वीप ग्रुप। टू मेजर आइलैंड, वैसे तो और भी आइलैंड है, श्रीहरिकोटा भी है, पम्बन भी है, न्यू मोरे आइलैंड भी है, लेकिन दो मेजर आइलैंड है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार इज volcanic in nature, volcanic in origin, एंड लक्षद्वीप का ज्यादातर आइलैंड, पूरा तो नहीं लेकिन मैक्सिमम इसका क्या है, कोरल, कोरल का ओरिजिन है लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये दो आइलैंड है हम लोग के पास, कौन सा, एक तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो दोनों आइलैंड को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार अंडमान निकोबार। देखो अंडमान निकोबार को अगर देखते हैं, दैट इज वोल्केनिक इन नेचर। तो इंडिया का पार्ट से इधर तो म्यांमार का आइलैंड हो जाता है। तो म्यांमार का जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है वो कोकोस है। कोकोस और अंडमान निकोबार के बीच में द गैप, जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, कोकोस स्ट्रेट। कोकोस स्ट्रेट क्या होता है, ये स्ट्रेट मतलब वाटर बॉडी, narrow water body which is connecting two major water bodies and separating land mass like म्यांमार और अंडमान निकोबार को सेपरेट करने वाला स्टेट कौन सा है, दैट इज कोको स्टेट। ओके, तो कोको स्टेट, तो सबसे पहले देखो अंडमान, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, तीन आइलैंड मिलकर अंडमान, अंडमान एंड निकोबार है ना, इधर बना लिया नॉर्थ, देन मिडिल, साउथ, तीन अंडमान हो गया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। नॉर्थन अंडमान, मिडिल अंडमान, दिस इज सदर्न अंडमान। तो थोड़ा इधर कर लेते हैं सो दैट हम देख लेंगे। सो नॉर्थन अंडमान, मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान, तो ये सारा क्या है, मतलब मेजर आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार। ठीक है, दीज आर द मेजर आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार। और उसके एकदम नीचे जाओगे, ठीक है, दैट इज थोड़ा सा दूर पे जाने से इधर मिलेगा तुमको लिटिल अंडमान। तीन के बाद क्या हो गया ऐसा, लिटिल अंडमान। तो ये है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, नॉट द निकोबार, नॉट द निकोबार, दिस इज अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। उसमें चार आइलैंड है मेजर, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, बहुत सारे 500 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड है इसमें, मोर देन 500, है ना। और इसमें देखो तो अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर किधर लोकेटेड है, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन सदर्न अंडमान। यहाँ पर राइटिंग हियर पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन सदर्न अंडमान। यहाँ पर दो मेजर वोल्केनिक माउंटेन है। मिडिल अंडमान के पास है, इसका ईस्टर्न पार्ट में, मिडिल अंडमान के ईस्टर्न पार्ट में सपोज ये है, दैट इज बैरन आइलैंड, and this is the only active volcano of India. This is the only active volcano of India. कौन सा है, बैरन आइलैंड, एंड बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन मिडिल अंडमान। नॉर्दर्न अंडमान का ईस्ट में, इधर नहीं बनाओ, ईस्ट में बनाना क्योंकि ईस्ट में लोकेटेड है। पूरा ही मिट गया क्या, अभी देखो, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्दर्न अंडमान। उसके बाद क्या है, मिडिल अंडमान। नॉर्दर्न अंडमान का ईस्ट में कौन है, नॉर्दर्न अंडमान का ईस्ट में है नारकोंडम, ये डोरमेंट वोल्केनो। और मिडिल का ईस्ट में बैरन,
active volcano. So I'm writing here active and dormant. ये ध्यान रखना किसका पार्ट है, पूरा वोल्केनिक नेचर का आइलैंड है ये सब, तो बैरन आइलैंड और नारकोंडम, ठीक है। उसके बाद देखो कोको स्टेट किसके किसके बीच में, कोको स्टेट बेसिकली सेपरेटिंग द कोकोस आइलैंड, कोकोस आइलैंड किसका है, म्यांमार, कोकोस आइलैंड ऑफ म्यांमार, उसको सेपरेट कर रहा है अंडमान निकोबार से, और नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है इधर अंडमान का लैंडफॉल, माइंड इट, सो लैंडफॉल आइलैंड इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या अंडमान निकोबार का। तो कोको स्टेट किसको सेपरेट कर रहा है, मेनली कोकोस आइलैंड और लैंडफॉल आइलैंड, लैंडफॉल आइलैंड इंडिया का और कोकोस म्यांमार का, और उन दोनों को सेपरेट करने वाले स्टेट का नाम क्या है, कोको स्टेट, ठीक है, उनको सेपरेट करने वाला क्या नाम है, कोको स्टेट। उसके बाद देखो सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान, सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में गैप है, तुम्हारा गैप है ना, गैप को क्या बोलते हैं, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। So Duncan Passage is located between Southern Andaman and Little Andaman. ठीक है, Duncan Passage is located between which islands? Southern Andaman and Little Andaman. ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा था कि डंकन पैसेज कहाँ पर लोकेटेड है, सुनते, तो ये क्या हो गया तुम्हारा पूरा अंडमान, अंडमान में उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है, नीचे देखो तो निकोबार आएगा, अभी तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड था, हम लोग देखेंगे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान के बाद निकोबार, ठीक है, अंडमान नॉर्थ में, निकोबार साउथ में। निकोबार में क्या है, इसमें देखो कार निकोबार, देन लिटिल निकोबार एंड देन ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं कार निकोबार में, कार निकोबार, देन लिटिल निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, देन सबसे नीचे आएगा ग्रेट निकोबार। तो तीन क्या हो गया, निकोबार ग्रुप सॉरी, चार क्या हो गया, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो ये अच्छा, यहाँ पर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है पिग्मेलियन पॉइंट, ध्यान रखना, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज पिग्मेलियन पॉइंट, दैट इज आल्सो नोन एज इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार का पार्ट, पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, ठीक है, द पार्ट ऑफ व्हाट, ग्रेट निकोबार, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इट वाज ड्रॉन्ड इन द सुनामी ऑफ 2004, लेकिन फिर से ये ऊपर आ गया है, 2004 का सुनामी में ये डूब गया था, कौन, पिग्मेलियन पॉइंट और व्हाट यू कैन से इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है कि डंकन पैसेज किधर है, नॉर्दर्न अंडमान किधर है, किधर है, और जो हाईएस्ट पीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक नॉर्दर्न अंडमान में जो हाईएस्ट पीक है अंडमान का, दैट इज सैडल पीक, पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अंडमान, नॉर्दर्न अंडमान का पार्ट है, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, इधर आ गई, यही करना,
यहाँ पर कौन सा है हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार दोनों का, सैडल पीक। तो सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार बोथ, लेकिन लोकेटेड कहाँ पर है, नॉर्दर्न अंडमान, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है दैट इज माउंट थुलियर, वो किधर है, वो ग्रेट निकोबार में, माउंट थुलियर पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, माउंट थुलियर सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, माउंट थुलियर। तो ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन तुमको याद रखना है अपना ग्रेट निकोबार, जो कि इसका ज्यादातर आइलैंड क्या है दैट इज बोलते हैं उसको क्या, वोल्केनिक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सैडल पीक के बाद ग्रेट निकोबार सेकंड हाईएस्ट है, पीक ऑफ अंडमान निकोबार, ठीक। तो अब देखो ये अंडमान निकोबार, और दूसरा क्या है अब हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप। दिस इज ऑल अबाउट, आई होप यू हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स अबाउट व्हाट, अंडमान निकोबार। नाउ द नेक्स्ट इज लक्षद्वीप। तो इंडिया को मैं इधर बना दे रहा हूँ सो दैट यहाँ पर तुम इस एरिया में पूरा लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप क्या है, कोरल इन ऑरिजिन। तो लक्षद्वीप इज कोरल इन ऑरिजिन, ओके, लक्षद्वीप इज कोरल इन ऑरिजिन। अगर लक्षद्वीप की बात करते हैं तो पूरा कोरल से बना है, और लक्षद्वीप ये बहुत सारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, छोटा छोटा ऐसा करके। लक्षद्वीप का है, और 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मतलब 8 डिग्री जो लैटिट्यूड है, इंडिया में ही शुरू होता है ना 8 डिग्री के नीचे मालदीव्स है। 8 डिग्री चैनल इज डिवाइडिंग लक्षद्वीप विद मालदीव्स। तो मालदीव्स 8 डिग्री के नीचे और 8 डिग्री के ऊपर क्या है, लक्षद्वीप। तो 8 डिग्री चैनल और 8 डिग्री लैटिट्यूड इज डिवाइडिंग द टू मेजर रीजन्स, इंडिया वाला लक्षद्वीप और वो फिर, और यहाँ पर देखो दैट इज अगर हम लोग देखते हैं तो कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। अंडमान का क्या था, पोर्ट ब्लेयर, कावारती इज द कैपिटल ऑफ, मान लो ये कावारती है सपोज, कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। 8 डिग्री चैनल इज डिवाइडिंग लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, बोथ आर कोरल इन ओरिजिन, दोनों कोरल है, ध्यान रखना, बोथ आर कोरल इन ओरिजिन। और यहाँ पर कावारती इज व्हाट, कावारती इज ओवरऑल व्हाट वी कैन से, लक्षद्वीप का क्या है, कैपिटल है, कावारती इज द कैपिटल ऑफ। तो कावारती बोलते हैं किधर, 9 डिग्री नॉर्थ में, कावारती लक्षद्वीप में तो है लेकिन 9 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ में, कावारती इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ 9 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, उसको 9 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। तो अच्छा, 9 डिग्री का सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज मिनिकॉय आइलैंड, मिनिकॉय इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, माइंड इट, मिनिकॉय इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। So Kavarati and Minicoy is separated from 9 degree. Mind it. Kavarati and Minicoy is separated by 9 degree. ये 9 degree का significance है. So Minicoy is the biggest, and who is the smallest island? Bitra. Bitra is the smallest island of Lakshadweep. Minicoy is the biggest. So I am writing here smallest. तो यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ 8 डिग्री एंड 9 डिग्री, याद रखना है 8 डिग्री किसको डिवाइड करता है, 9 डिग्री किसको डिवाइड करता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो
ये लक्षद्वीप के बारे में है। और लक्षद्वीप क्या है, ये भी पूरा लक्षद्वीप को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इतना सारा आइलैंड है, तो 11 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। 11 डिग्री इज डिवाइडिंग द एंटायर लक्षद्वीप इनटू 11 degree is dividing the Lakshadweep into two parts. Mind it, the 11 degree is dividing the entire Lakshadweep into two parts. Okay, the northern part is what? Northern part is Amini Devi. Northern part of northern group of island is known as Amini Devi, and southern part below 11 degree. Below 11 degree it is known as Cananore. Cananore. Okay. So, guys, this is all about Andaman Nicobar and Lakshadweep. So it is for today. All the best. Let's meet tomorrow.